social worker can play a role in treatment and rehabilitation of coronavirus affected persons. So I want to present my things. Coronavirus is not a new virus, but it was identified in 2003 as SARS coronavirus, acute response, severe acute respiratory syndrome, which causes severe respiratory illness in human and animal. It was originated in November 2002 and July 2003 in South China and spread to several countries, infecting 8,273. Out of them, 775 people died. International Committee on Taxonomy of Virus and World Health Organization officially named this virus as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease is officially named by WHO in International Classification of Disease as COVID-19, means the coronavirus disease of 2019. Formerly, this disease was referred to as 2019 novel coronavirus. अब मैं इसकी डिफिनीशन पे जो प्रोफेसर मेलिसा कॉर्नार्ड स्टॉपलर ने दी है उसको भी मैं डिटेल में नहीं देना चाहता और ना ही वायरस कैसे नहीं it is spread by coughing, by contact, and by touching the things on which this virus is there, the surface and things. So I'm not going to detail. But I will come in this new virus which was originated in 19. A pneumonia of unknown cause was declared in about which China was reported to the WHO on 31st December 2019. WHO announced public health emergency for international concerns on 30th January 2020, as well as named this disease as COVID-19 on 11 February 2020. WHO also declared COVID-19 as a pandemic on 11th March 2020. Just after this declaration, India also declared COVID-19 as an epidemic. COVID-19, India is spending on health facilities only 3.9% of GDP, so that we have lacking of medical doctors, paramedical staff, hospitals, equipment, and other health facilities as per the population and requirement. During this situation of health facility, COVID-19 is alarmed in India. We are not prepared for this outbreak. There are two types of major issues
One is programmatic errors, and second is communication planning. Programmatic errors are international flights were not suspended in time. There were no proactive screening at airports. Sorry. Domestic migrant population movement, identification of these coronavirus patients, their testing, isolation, quarantine, lack of trained FLWs, active surveillance, monitoring of confirmed and suspected cases, as well as improper contact tracing, etc. And communication misunderstanding, misconception, distrust, rumors, unaware fear of infection, role of media, lack of strategy and outbreak preparedness, planning, and implementation of communication activities. It was a drop, these drawbacks were present in our country. Now I want to just highlight the communication strategy and plan. International communication, advocacy, and social mobilization are the main C4D approach for COVID-19. Key messages and important information about COVID-19 will be disseminated by using different channels of communication. To address these issues and problems through this communication strategy and planning are as follows. Number one, situational analysis through desk review and field visit observation. Number two, mapping of capacity and assessment for COVID-19. Number three, development of risk communication strategy for COVID-19 planning and implementation. Number four, use of communication channels, radio, TV, media, etc. Number five, development of monitoring tools and conducting the monitoring with supportive supervision. Number six, strengthen surveillance system. Seventh, strength, partnership, close coordination, advocacy with influencer, strengthen network for key influencer. Number eight, data collection and analysis. Number four, ninth, adopt the approach of reaching to every district. And the last and 10th point is follow up overall program on regular basis. But one thing I want to highlight here, because this corona virus and COVID-19 needs social help also. And social work can give very, very useful and important services to society. So I highlight and give some points that how the social worker can help and these for this in the treatment, in management, as well as in rehabilitation of coronavirus affected and affected patients. So you see the
social work and social intervention to make the laborers and other workers who lost their job and work too long without food and shelter to reach their native place, aware of their socio-economic condition, and encouraged to face these unexpected problems. Next, to help the COVID-19 affected persons to help themselves to work hard with other family members in present circumstances and accept this challenging situation. Next, to discuss the psychosocial problems of the parents and patients who were treated in isolation to take them out of depression and anxiety by using relaxation therapy and sociotherapy, etc., to help the marginalized and landless factory workers who lost their job due to coronavirus pandemic using social casework technique towards psychosocial economic rehabilitation of such patients, to help the family members and community to accept the family members who were kept in quarantine as a contact case are treated as a suspected case of COVID-19 as a useful member of the family and community, to guide and encourage the immigrant laborers to accept available jobs and cooperate with family and community people. Next, to make the marginal people without regular source of income aware of the government program for their financial assistance, such as grant, loan, food, transportation, etc., to make landless workers and kisans aware of natural resources available in the villages which may be used for partial earning. And the last point, to help the jobless workers and treated COVID-19 patients to develop positive relationships and understanding between family members and the community. Thank you very much. बहुत बहुत So धन्यवाद। I gave this. Hello. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर असगर सगीर इनाम शास्त्री साहब। आपने कोविड-19 के बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रखी कि कैसे सरकारों को किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए, कैसे समाज के उन हाशिए के लोगों को उससे निकालने की जरूरत है। ये सारे मुद्दों पे आपने बात की। मैं आपको इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। अगले इस कड़ी में पद्म श्री प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सर जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो देश के माने जाने कार्डियो सर्जन हैं, आपको पद्म श्री का सम्मान 1991 में भारत सरकार ने दिया था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अनुभवी चिकित्सक हैं और पूरे दुनिया में आप कार्डियो सर्जन के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब से आपके बारे में हम लोग जानते हैं। मैं पद्म श्री आदरणीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर से निवेदन करूंगा कि 15 मिनट के अंदर अपनी बात को सर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि समय का ध्यान हम लोगों को रखना है। प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सर। डॉक्टर जगदीश सर के पास आवाज पहुंच रही है? लग रहा है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से। हाँ जगदीश सर जी।
हाँ जगदीश सर, डॉक्टर जगदीश सर, जगदीश सर आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर, डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर आवाज जा रही है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से लगता है कि बोलेंगे प्रॉब्लम हो रही है। मैं इस कड़ी में डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले और डाइवर्सिटी जैसे विषय पे दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेचर देने वाले लगभग 90 पुस्तकों के लेखक, और ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा कि किसी न किसी न्यूज़पेपर में आपका संपादकीय न प्रकाशित होता हो और आप डाइवर्सिटी मैन के रूप में जाने जाते हैं। मैं आदरणीय HL दुसाद सर से निवेदन करूंगा कि अपनी बात आप 15 मिनट के अंदर ही समाप्त करेंगे सर। इस सेमिनार में शिरकत कर रहे सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। सर, मात्रा में भारत के मजदूर वर्ग को सड़कों पर उतरकर असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा है, वो अपने आप में हिस्ट्री है। दुनिया के इतिहास में, विशेष करके 21वीं सदी में, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि लाखों लोग सड़कों पर इस तरीके से लाचार और बेबस होकर उतरेंगे। इनकी बेबसी पर सोशल मीडिया में आपको सैकड़ों कविताएं नजर आई होगी, हजारों पोस्ट आपकी नजरों से गुजरे होंगे। तमाम लोग मान रहे हैं कि जो इस बार जो है लोगों का जो पलायन हुआ है, जो तकलीफ उठानी पड़ी है, ऐसी स्थिति संभवतः भारत पाक विभाजन के चुकी है। मीडिया बतला नहीं रही है, लेकिन आप फैक्ट जानते हैं कि 1 लाख से अधिक लोग प्राय आक्रांत हो चुके हैं इस बीमारी से, जो चाइना से आगे का बात है। और ये जो स्थिति है, इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार ये सरकार है। अभी कुछ देर पहले अस्कर साहब ने बतलाया था कि इस देश में विदेशों से ढेरों लोग आए और उन लोगों को बिना प्रॉपर टेस्ट किए, बिना आइसोलेशन डाले घर वापस भेज दिया गया। जानकारी आपको दो दूं कि कोरोना के लॉकडाउन की घोषणा के 1 सप्ताह पहले 102 फ्लाइट से जो है, सोचिए कितनी मात्रा में लोग आए थे। मोदी जी को पता था कि उन्होंने नमस्ते ट्रंप के तहत जो आयोजन किया था, जिसमें 10 लाख लोगों को पार्टिसिपेट कराने का उनका प्लान था, लोग किए। उस आयोजन में ट्रंप के साथ हजारों लोग विदेश से आए थे और विदेश से जो लोग आए थे, उन्हीं लोगों के माध्यम से कोरोना फैला है। तो मित्रों, जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए खास तौर से जिम्मेवार मोदी सरकार है। 31 जनवरी को आपके देश में कोरोना का पहला सिम्टम मिलता है। यदि सरकार उस हिसाब से प्रिकॉशन लेती तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती, लेकिन सरकार के सामने दूसरे भी एजेंडे थे। मोदी सरकार को मध्य प्रदेश में सरकार बनवानी थी, मोदी सरकार को ट्रंप को ऐतिहासिक अंदाज में स्वागत करना था, और भी ऐसे बहुत से काम थे जो पूरा करना था। इन सारे टास्क को, सारे कामों को करने के बाद से अचानक जो है लॉकडाउन की मोदी घोषणा करते हैं।
और ये घोषणा जो है बिल्कुल इसी अंदाज में होती है जैसे नोटबंदी हुई थी। डॉक्टर सुनाई पड़ रहा है, मैं जी, कनेक्ट हूँ कि नहीं? जी, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। अब ये जो लॉकडाउन की घोषणा हुई है मित्रों, सभी लोग इसकी तुलना जो है उससे नोटबंदी से कर रहे हैं। और नोटबंदी को बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक क्या था, तुगलकी फैसला था। तुगलकी फैसले का मतलब ये होता है कि उसके पीछे तो नियत यही थे, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन आपको बतला दूं कि नोटबंदी का फैसला तुगलकी फैसला नहीं था, सुपरकल्पित फैसला था, वेल प्लान फैसला था। उसके माध्यम से मोदी जी को कुछ टास्क पूरे करने थे। टास्क क्या था उनके सामने? भ्रष्टाचार विरोधी इमेज उनकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उनको ये दिखलाना था कि मोदी जो कहे थे कि हम सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर जो विदेशों से काला धन ला करके प्रत्येक के खाते में 15 लाख डाल देंगे, वो चीज जो है विफल हो चुकी थी। ऐसे में उनको एक संदेश देना था कि मोदी अभी भी जो भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पहले की तरह स्ट्रिक्ट। मोदी को इस बात का संदेश देना था कि मोदी एक स्ट्रिक्ट शासन है जो देश हित में कठोर फैसले ले सकते हैं, इस तरीके से किया। लेकिन आपको बतला दूं कि नोटबंदी के पीछे जो मोदी का जो सबसे बड़ा प्लान था, वो प्लान ये था विपक्ष के फंड पर हमला बोलना, विपक्ष के फंड पर सर्जिकल स्ट्राइक करना। क्योंकि जब नवंबर में हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही, उसके कुछ माह बाद ही 5 राज्यों में चुनाव होने थे, और 5 राज्यों का चुनाव जीतना उनके लिए बहुत जरूरी था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो हिंदुत्व की हृदय स्थली है। उस चुनाव को जीतने के लिए विपक्ष के फंड पर जो हमला उनको बोलना था, और वो जो है नोटबंदी के नाटकीय फैसले के माध्यम से उन्होंने कर दिखाया। अब ये जो लॉकडाउन का फैसला किया, बिल्कुल सेम उसी का जो है तरीके से कहिए तो रिपीटेशन हुआ है। उन्होंने जो गलतियां की, 31 जनवरी को कोरोना का केस जो है जन समक्ष आने के बाद से उनको जो प्रिकॉशन लेने चाहिए था, वो अपना पॉलिटिकल टॉस पूरा करने के चक्कर में नहीं ले पाया, और नहीं ले पाने का नतीजा जो है जिस तरीके से स्प्रेड होने वाला था, इस बात का उनको आभास हो गया था। ऐसी स्थिति में उनके सामने एक मौका था कि हम लोगों के बीच संदेश दें कि मोदी जो है कोरोना के खिलाफ स्ट्रिक्ट हैं, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए, अभी भी उनमें जो है निर्णय लेने की अपार क्षमता थी। इन्हीं सब प्लान के तहत उन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ आप देखते हैं। मोदी के इस फैसले के कुछ दिन बाद ही जो है लाखों लोग सड़कों पर उतर पड़े, और उतरने के बाद से उस दृश्य की सृष्टि हुई, उस सीन का जो पैथेटिक सीन का क्रिएशन हुआ भारतीय सड़कों पर, जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। आज जो है दुनिया के तमाम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या मोदी जी को इस बात का एहसास नहीं था कि लाखों लोग सड़कों पर उतर करके इस तरीके से जो है सीन क्रिएट करेंगे? क्या उनको पता नहीं था? आप जानते हैं कि सड़कों पर जो लोग उतरे उस क्रम में जो है 16 लोग आपका रेल लाइन पर कट के मर पड़े। अभी परसों ही जो है 24 लोग जो है यहाँ आपके औरैया में थी, बहुत ही पैथेटिक तरीके से मारे गए हैं। और सरकार की हृदयहीनता देखिए कि जो 24 मजदूर यहाँ पर मारे गए, उसमें से जो 12 लोगों को भेजा गया झारखंड, उनको पॉलीथीन में बंद करके 3 DCM में डाल दिया गया, और उसी के साथ जो है 10 इंजर्ड लोगों को डाल दिया गया, और उनको यहाँ से 800 किलोमीटर दूर रवाना कर दिया गया 40 डिग्री सेल्सियस के भी। एक अभूतपूर्व हृदयहीनता दिखलाई गई है इस श्रमिक वर्ग के बीच में। तो आज की तारीख में मित्रों मैं ये कहूंगा कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है सो तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी का विषय है कि मोदी सरकार ने क्यों इन श्रमिक वर्गों की उपेक्षा की। इस लाख टके का सवाल, इस पर जो है तमाम मनोवैज्ञानिक भी अध्ययन कर रहे हैं, आप जैसे समाजशास्त्री भी अध्ययन कर रहे हैं, और ये होना ही चाहिए। जो हृदयहीनता मजदूरों के प्रति दिखलाई गई है, ये होना ही चाहिए। अब ये जो सबसे बड़ा सवाल है उसके पीछे क्या कारण है, मेरा जो अध्ययन है मैं वो बताना चाहता हूं। इस क्रम में आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहूंगा कि मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो 24 आवर्स अपने एक सूत्री मेन एजेंडे पर एक्टिव रही। मेन एजेंडा क्या है? मेन एजेंडा इनका हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना। और ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना के एजेंडे पर 6 सालों से मोदी सरकार है, 1 मिनट के लिए भी जो है पीछे नहीं है। हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? हिंदू राष्ट्र मतलब एक ऐसी राष्ट्र का निर्माण करना है
जिसमें शक्ति के सारे स्रोत हिंदू ईश्वर के उत्तम अंग बेटर ऑर्गन्स, मुख, बाहु, जंघे से पैदा हुए लोगों के हाथ में शक्ति के स्रोत चले जाए। और ये जो शूद्र अतिशूद्र है, हिंदू धर्म शास्त्रों में इनको जिस तरीके से जो है बिल्कुल शक्तियों से शून्य बतलाया गया, उस स्थिति में पहुंच गया। अब गौर करें तो पूरे 6 साल से मोदी का यही एजेंडा रहा है, अर्थात शूद्र अतिशूद्रों को पूरी तरीके से उस स्थिति में पहुंचाना जिसका वर्णन आपको हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलता है। अब गौर करिए, जो ये लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो कहने के लिए श्रमिक वर्ग है। और ये श्रमिक वर्ग कौन है? ये भारत के जन्मजात शूद्र अतिशूद्र हैं। तमाम अध्ययन बतला रहे हैं कि इसमें प्राय 99% लोग जो है दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय से रहे, सवर्ण समुदाय से नहीं रहे। क्योंकि ये शूद्र अतिशूद्र समाज से है, इसलिए मोदी सरकार ने इस समुदाय के प्रति हृदयहीनता का परिचय दिया। और हृदयहीनता भी नहीं कर सकते। जिनको हिंदू फिलॉसफी की जानकारी है, उनको पता है कि हिंदुओं की नजरों में शूद्र अतिशूद्रों की हैसियत जो है बिल्कुल एक ह्यूमन कैटल जैसी रही है, एक नर पशु जैसी रही है। इनकी नजरों में ये पूरी तरीके से अधिकारहीन प्राणी रहे हैं। इनके विषय में ये धारणा है कि ये जो विशाल आबादी है शूद्र अतिशूद्रों को, ये अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों के कारण वर्तमान की दुरावस्था से गुजर रही है। इसलिए जो है पूरा हिंदू समाज का मतलब उससे है जिसे हिंदू धर्म में पूरा अधिकार दिया गया है शक्ति के स्रोतों का भोग का, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये हिंदू हैं और बाकी जातियां जो है गुलाम है। ये हिंदू जो है ये हमेशा से जो है शूद्र अतिशूद्रों के प्रति संवेदनहीन रहे हैं। और यही वर्ग जो है आपका करोड़ों की, लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरा है। तो इसके प्रति जो है ये सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाया, इनको लाचार और असहाय बनाया। और इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी है। जो लाखों लोग जो है सड़कों पर उतरे, सरकार को 3-4 दिन बाद ही पता चल चुका था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन उसने कोई केयर नहीं किया। जबकि इस बीच आप देखेंगे कि जो खास वर्ग के लोग हैं उनको विदेशों से लाने के लिए 64 जो है फ्लाइट भेजा गया। जो आपका कोचिंग लेने वाले छात्र वहां फंसे हुए थे, कोटा इत्यादि में फंसे हुए थे, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उनको आपस में लाने के लिए पूरी व्यवस्था की। इस बीच में जब मामला और कठोर हो गया तो सरकार ने जो है 15 जोड़ी एसी ट्रेनें चला दी। कहने का मतलब कि कोरोना में जो भारत का जो जन्मजात सुविधा भोगी वर्ग है उसका ख्याल रखते हुए तमाम प्रिकॉशन जो है सरकार की तरफ से दिया गया। लेकिन जिसको पूरी तरीके से उपेक्षा की गई वो आपका यही शूद्र अतिशूद्र वर्ग है। अब सवाल पैदा होता है कि मोदी सरकार ने क्यों किया, ये मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। 5 मिनट में कंक्लूड करिए, 5 मिनट समय है। अच्छा, इनको इस स्थिति में पहुंचाने के पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण सामने आया है, वो कारण ये है कि भारत के मजदूर वर्ग को इतना लाचार कर दिया जाए, इतना बेबस कर दिया जाए कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र को इतना जो ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है उसको ये चैलेंज न करे। इस सरकार की हृदयहीनता देखिए कि लाखों मजदूरों की बेबसी देखने के बावजूद इस दौर में इन्होंने श्रम कानूनों में ढील दिया। इस दौर में उन्होंने आपको निजी आपका ये डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई था 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया। इस दौर में उन्होंने बहुत सी खदानों को निजी क्षेत्र में देने की कोशिश किया। तो मित्रों, जो मैं बता रहा हूं कि ये सरकार जो है 24 घंटे हिंदू राष्ट्र के निर्माण के एजेंडे पर काम कर रही है। और हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा जो है वो शूद्र अतिशूद्र है, जो भारतीय संविधान के सहारे आप जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेखक बन करके हिंदू धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं। आइडियल हिंदू राष्ट्र तभी होगा जब ये शूद्र अतिशूद्र समाज जो है बिल्कुल असहाय और गुलाम समुदाय के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए सरकार जो है बड़ी तत्परता के साथ तमाम चीजें जो है निजी क्षेत्र में देने जा रही है। अभी जो 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा हुई, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जिन निजी क्षेत्र के लोगों ने कई लाख करोड़ लेकर के सरकार का जो है एकदम भट्ठा बैठा दिए गए हैं, उनको जो है बिना गारंटी को अधिकांश पैसा बांट दिया गया। तो मित्रों, निजी क्षेत्र को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है और मजबूत ये तभी बनेगी तो निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक है वो निहायत ही दुर्बल बन जाए। तो आपके मजदूरों को और दुर्बल बनाने के लिए कानून में ये कर रही है और इसके द्वारा जो है इनको इतना बेबस बना दिया गया कि आने वाले दिनों में कभी उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे निजी क्षेत्र के खिलाफ। तो मेरा कहना यह मित्रों
कि आज वायरस एक तरफ है, लेकिन वंचित वर्गों के सामने वायरस से कहीं बड़ी लड़ाई जो है ये सरकार है। आप कैसे जो है इससे पार पाएंगे, इस दिशा में सोचना सबसे जरूरी है। कोरोना का जहां तक सवाल है, और लोग जैसे मरेंगे वैसे हम मरेंगे, लेकिन सरकार की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग तो पूरी तरीके से भारत के विशाल जो शक्तिहीन तबका है उसको बिल्कुल ध्वस्त करने पर है। तो किस तरीके से जो है हम इस समाज को बचा पाए, आज मेरे ख्याल से लगता है कि कोरोना से कहीं बड़ा सवाल है। थैंक यू। बहुत बहुत आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही व्यवहारिक जो कोविड-19 का पक्ष है उस पर अपना विचार आपने रखा है। मैं आवाज का क्या हो रहा है? इस कड़ी में पद्म श्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर छूट गए थे। हाँ, आवाज आ रही है? डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल। मैं आदरणीय जगदीश प्रसाद सर से निवेदन करूंगा कि अपनी बात आप रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी। मैंने अभी दुसाद जी का, इनाम साहब का सुना बातें। मैं तो मेडिकल आदमी हूँ, मेडिकल की बात करूंगा। ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब फर्स्ट टाइम जब 30 दिसंबर को जब चाइना में पता चला कि कोई वायरस है जिसके कारण रेस्पिरेटरी तक, हेलो जी जी आवाज आ रही है। 7 दिसंबर को पता चला कि एक कोई वायरस है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। और इनाम साहब बता रहे थे कि 2003 में भी कोरोना वायरस था। वो समय जो कोरोना वायरस था वो काफी डेंजरस था, इससे भी ज्यादा डेंजरस था। उसमें मोर्टिलिटी 50% से ज्यादा होता। उसके बाद इसमें म्यूटेशन आ गया और इसके बाद इसमें 80 to 85% लोगों को एसिम्प्टोमेटिक रहता है, जिसमें 10 से 15% लोग की सिम्टम हो पाते हैं और उसमें जो है 5% लोग जो है वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे जाते हैं, जिसको सार्स बोलते हैं। तो एक हम लोगों से बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि जब अप्रैल मार्च तक 11 मार्च को जब WHO ने कह दिया कि कोरोना वायरस एपिडेमिक है, तो हम लोग फ्लाइट को टेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ चाइना से और सिंगापुर से आने के लिए। लेकिन जब तक कोरोना वायरस जो है पूरे यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट सभी जगह फैल चुका था, उनसे आने वाले यात्रियों को हम बहुत दिन तक हम स्क्रीन नहीं कर पाए और वो डिफरेंट जगह चले गए। और इसलिए हुआ क्या कि आप ये सोचिए कि मार्च तक 22-24 मार्च तक हमारे पास केसेस सिर्फ 2000 से काफी कम थे। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये जरूरी था लॉकडाउन करना कि ट्रांसमिशन ना हो, लेकिन जो लोग जा चुके थे उनको हम रोक नहीं सकते, ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुके थे। तो उनके इन्फेक्शन से क्या था कि कोरोना का सिम्टम्स 10-15% बढ़ना शुरू कर दिए। इस बीच में एक और घटना घट गई कि हमारे माइग्रेंट वर्कर चलना शुरू कर दिए। तो पर्पस ऑफ जो लॉकडाउन था वो डिफीट हो गया, कहा कि एक जगह काफी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और इस तरह से जो लॉकडाउन का पर्पस था वो खत्म हो गया। दूसरी हमसे प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग जो टेस्टिंग किट थे वो हमने चाइना से मंगाया, लेकिन वो ठीक नहीं निकला और टेस्टिंग किट हमारे पास बहुत नहीं थी, हमारा लैब भी बहुत नहीं था जिसके कारण हम सबको टेस्ट कर सकते।
और अप्रैल आते आते 1 अप्रैल तक समझिए कि पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में मोर देन 1 लाख कोरोना हो चुका था। हमारे यहाँ भी 2000 पहुंच चुके थे और कुछ लोग इंक्यूबेशन पीरियड में थे, वो बढ़ना शुरू कर दिए और उनका कंटेक्ट जो था एक से दूसरा, दूसरा से चौथा। मूवमेंट से, लॉकडाउन से जरूर फायदा हमें हुआ कि जितने तेजी से बढ़ना चाहिए था उतना तेजी से नहीं बढ़ा। हमें टाइम मिला इसको हम ठीक करने का। इसके बीच में सरकार कुछ ऐसा डिसीजन ले कि लॉकडाउन से अगर सडन हमारा कुछ हो जाएगा तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक कर सकते। तो ये टाइम थी। दूसरी बात ये था कि जो हमारा बहुत से देशों में वैक्सीन बनने के शुरू हो गई। मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको, वैक्सीन ट्रायल भी हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज। लेकिन वैक्सीन जो है वो कम से कम 1.5 साल के पहले नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी मंकी ट्रायल हुआ है, फिर ह्यूमन ट्रायल होगा, तो इसको देखा जाएगा कि उसमें उसकी कोई हानि तो नहीं है। और पूरे वर्ल्ड को अगर हमको वैक्सीनेट करना है तो 2 से 2.5 साल लगेगा। एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ सबों को कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीना होगा। ये स्टेबल वायरस है, ये जाने वाला नहीं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा वो हमारे गरीब लोगों पर पड़ा। 47 करोड़ लेबरर हैं, गेस्ट लेबरर डिफरेंट स्टेट में है। मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा था सरकार को भी, नीति आयोग को भी, कि माइग्रेंट लेबर को रहने तो जहाँ पर है और उन्हें हम 5,000 रुपये महीना 3 महीने तक दें, वो कहीं नहीं जाए और फिर अपने काम में लग जाए। दूसरा मेरा सजेशन था, जो होना चाहिए था, कि अगर लेबरर वही रहे जहाँ पर काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का काम था कि उनका टेस्ट करवाएं, जो पॉजिटिव हो तो उसको आइसोलेट कर लेते, जो नेगेटिव हो तो उनको काम करने देते और उसी जगह रहने देते। तो हमारा जो ट्रांसमिशन था वो नहीं हो पाता। उस समय तक हमारे कुछ ही शहरों में कोरोना था, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। लेकिन जब माइग्रेशन शुरू हो गया और पहले लोग जा चुके थे फ्लाइट से, तो हर स्टेट में ये शुरू हो गया। अब देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, पता चला कि बिहार में जो माइग्रेंट गए उसमें करीब 300 लोग पॉजिटिव आ गए। अब वो डिफरेंट गांव में जाएंगे तो उनको भी फैलेगा। तो एक बहुत बड़ा अभी जो है वायरस जो है ये बढ़ता चला जाए, ये बढ़ेगा। अभी इसका बढ़ने का टाइम है, लेकिन फिर भी हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क लगा के रखना है और जितना कम लोगों से मिल सके ताकि हम ट्रांसमिशन को कम से कम कर सकें। ये हम लोग का दायित्व है, ये सभी जनता का दायित्व है और सभी सरकार का, भारत सरकार का नहीं, सभी राज्य के सरकार को ये दायित्व था कि जहां वहां लेबर काम कर रहे हैं, जिस लेबर से आपने अपना इकोनॉमी को बढ़ाया, उस लेबर को आपने जाने क्यों दिया? उसी ने आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, उसी से आपने पैसा कमाया, उसी पैसे से, उसी के लिए मेहनत से आपने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर राजा हो गए। तो आप उनको जाने क्यों दिए? क्या आप 3 महीने भी उनको नहीं देखभाल कर सकते? ये बहुत दुख की बात है हमारे देश के लिए। ये संवेदनशील बात है हर मानव का, हर आदमी का जो हमारे देश में रहते हैं। नहीं चाहिए था इन लोग को भेजना, इन लोग को रखना चाहिए था वहीं जहां पर थे। दूसरी बात यह है कि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं निकली है। अब हम लोगों ने पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में 4 दवाइयों को टेस्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि ये दवाइयाँ अगर यूजफुल आ जाए
तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि एक डर तो है ही क्योंकि अगर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा तो लोगों को वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा, और उसमें वेंटिलेटर से जाने पर लोगों की मोर्टेलिटी काफ़ी हो जाती है, वो चाहे 2% ही हो चाहे 1% हो, लेकिन परिवार के लिए वो 100% होता है। एक परिवार में अगर किसी का होता है तो उसके लिए 100%, हम लोग परसेंटेज गिनते हैं, लेकिन हर परिवार के लिए वो 100% होता है। इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो जो अभी जो दवाइयाँ आ रही हैं, अगर ये बन गया और वैक्सीन बन गया तब हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते। तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर, हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन से काम हमें करना पड़ेगा। अभी जिस तरह से इनाम साहब ने एक बात कही हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि हमें जैसे अभी वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 3 भाग में बांट दिया टेस्टिंग करने का। एक जो है हाई रिस्क ग्रुप जो है हेल्थ वर्कर, दूसरे जो है ओल्ड एज प्रेग्नेंट लेडी, तीसरे जो है यंग ग्रुप है। तो उन्होंने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 50 से 100 लोगों को ये टेस्ट किया जाए और उससे एक स्ट्रेटजी बनाया जाए कि इस स्टेट में, इस कंटेनमेंट जोन में राइजिंग का टेंडेंसी क्या है, और उसी से लॉकडाउन को इजी करने की विचार को सौंपा जाए। पूरे कंट्री को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, पूरे स्टेट को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर स्ट्रेटजी देखा जाए यहाँ पर बढ़ रहा है, वहाँ पर हम लोग स्ट्रिक्ट हो जाएं, वहाँ पर हम लोग कंटेक्ट जितने भी कोई भी पॉजिटिव आता है उसके कंटेक्ट को हम लोग ट्रेस करें और उनको आइसोलेट करें, और कोई सिम्टोमेटिक हो जाता है तो उसको एडमिट करें। तो हमें ये हर स्टेट को ये करना पड़ेगा, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को एक उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। सबसे प्रॉब्लम हमारे देश के लिए जानते हैं क्या है? हम अपने देश में सिर्फ 1.3% ऑफ जीडीपी हेल्थ पर खर्च करते हैं। हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बिहार में या यूपी में देखेंगे, एक पेशेंट के ऊपर 8,000 से 9,000 पेशेंट के ऊपर सिर्फ एक बेड अवेलेबल, जबकि WHO का कहना है कि 1,000 पर एक बेड रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो आप पाए होंगे, अब हमारे पास देश में एक आत्मनिर्भरता बना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट हमारे यहाँ बनने लगा, ये बहुत अच्छी बात है। मास्क बनने लगे हमारे यहाँ, बहुत अच्छी बात है। और कुछ दिन में हो सकता है कि टेस्टिंग किट भी बनना शुरू हो जाए, जैसे कि NIV पुणे ने कहा है। अगर ये सब बातें हो जाए और हर लोगों का जिम्मेवारी होता है कि हम अपना डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप को सेफ करें, और अगर हम पॉजिटिव हैं और हम जितने लोग के कांटेक्ट में आए हैं तो उसे हमें इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि हम आइसोलेशन में कर सकें। इसके लिए एक उड़ीसा सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने एक IT सिस्टम डेवलप किया है जिससे वो सभी को मॉनिटर कर रहा है, और वहाँ देखेंगे आप उड़ीसा गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, केरला ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। तो ये स्टेट का दायित्व है कि इन लोगों को कंट्रोल करने का। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें मैक्सिमम, हमारी इकोनॉमी तभी बढ़ सकती है जब हम गेस्ट वर्कर को, जिसको लोग माइग्रेंट वर्कर बोलते हैं, हम स्पेशल पैकेज दे करके इनको रिवाइव करें, क्योंकि रिवाइव करने में भी हमें 6 से 8 महीना लगेंगे, क्योंकि जो चले गए हैं वो इतना जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। बहुत से काम ठप पड़ेंगे, इनको इंसेंटिव देना पड़ेगा, वर्क काफ़ी हैम्पर हो जाएगा, बहुत से MSME काम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पुलिस की चाहे जो भी कहिए आप, ब्यूरोक्रेट्स की जो टाइटनेस है उसको कम करें,
उसको एक अच्छे से बात करके काम करें, क्योंकि लॉकडाउन तो थोड़ा थोड़ा ईज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी असर नहीं दिख पा रहा है। इसका असर इसलिए नहीं दिख पा रहा है कि एक समझिए कि इंस्पेक्टर राज की बात आ गई, इंस्पेक्टर कहीं पे घूम रहा है, वो उसको ढीला करना पड़ेगा, उसके इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लिया कोई MSME अपना फैक्ट्री खोलना चाहता है, सामान बाहर से लाना चाहता है, तो उसको अलाउ कर देना चाहिए विदाउट एनी इंस्पेक्टर राज सिस्टम, कि नहीं आपको हम नहीं जाने देंगे क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन को ज़्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक तभी हमारी आ पाएगी और तभी हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमको इसी के साथ जीना है, लेकिन हमें अपना केयर करना है, अपने परिवार को केयर करना है, अपने समाज को केयर करना है। सरकार को बताना है कि अगर हमें कोरोना हो गया और हम जिस चीज के कांटेक्ट में आए, सबको नाम दें ताकि सबका टेस्ट हो और जो पॉजिटिव होगा उसको आइसोलेशन में रखा जाए। इन सब बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पासवान साहब कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो शिक्षा क्षेत्र में बहुत लंबे समय का अनुभव रहा है और उन अनुभवों से आपने जो हम सबको जानकारी दी है वो बहुत ही लाभदायक हम लोगों के लिए रहेगी। हम सब बहुत उससे सीख लेंगे और सरकारों को भी बहुत सारी चेतावनी थी, बहुत सारा अनुरोध था आपके बातों में कि जो मजदूर हैं उनके लिए सरकारों का क्या दायित्व है और 5,000 रुपया अगर महीना दे करके जहाँ मजदूर था वहीं पे अगर उनको रोक दिया गया होता तो आज जो विकराल रूप धारण कर लिया है कोरोना वायरस, 1 लाख से ऊपर संख्या पहुंच गई है मृतकों, तो शायद उतनी नहीं हो पाती, उससे कम हो पाती। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर से मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर अपना विचार रखें। पासवान साहब हमको इजाजत दीजिए। सर 10 मिनट और रहिए, खत्म होगा 10-15 मिनट में। कुछ देर तक रहेंगे, अमरनाथ जी। कुछ सवाल रहेगा तो सर आपसे कुछ सवाल भी किया जाएगा, 1-2। इंडिया रिस्पांस टू कोविड-19 स्ट्रेटजी, एडवांटेज एंड लिमिटेशन के वेबिनार में हम सभी चाहता हूं कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल होने और अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी। आज के वेबिनार इंडिया रिस्पांस टू कोविड-19 स्ट्रेटजी, एडवांटेज एंड लिमिटेशन की बात करें तो कोविड-19 महामारी ने जंगल की आग की तरह फैलते हुए दुनिया के करीब 200 देशों को अपने कंट्रोल में, घेरे में ले लिया है, जिससे करीब 27 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है। अभी हमें इसके रोकथाम का कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा कि ये कब खत्म होगा। जैसे अभी जगजीत जी ने भी कहा कि हमें इसमें जीना होगा इसी के साथ। WHO का भी है कि अभी कोई वैक्सीन बन तो रही है, कब बनेगी इसके कोई निश्चित नहीं है। अब हम जो है, बट इसके अलावा क्या है, बट जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है और इसके प्रभाव जो पड़ रहे हैं विश्व शांति और सुरक्षा को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। आज अदृश्य कोरोना के भयावह आक्रमणों से थर्राए विश्व की इस बात की चिंता सताने लगी है कि कोरोना के बाद क्या होगा। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना का काल में पूंजीवाद, साम्यवाद और प्रजातंत्र वाली व्यवस्था जो है, और उसके साथ साथ विश्व के बहुत सारे ऐसे नेता जो हैं, नेताओं का भविष्य भी दांव पर लग चुका है। जहां तक भारत के रिस्पांस की बात है कोविड-19 की, तो हम इसके समझने के लिए अगर हम देखें तो विश्व को हम 2 भागों में बांट कर देखना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी हम लोग एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट
हम लोग देखते हैं कि विश्व को अगर पॉलिटिकल साइंस शुरू करते हैं तो उसमें पढ़ाते हैं कि विश्व को हम 3 भागों में बांट के चलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। बट आज क्योंकि महामारी का इतना प्रकोप है कि उसमें ना कोई फर्स्ट वर्ल्ड है, ना सेकेंड वर्ल्ड है, ना कोई थर्ड वर्ल्ड, सभी पूरे दुनिया के लोग प्रभावित हैं, अमीर भी गरीब भी। हम इसलिए कोई ऐसा डिवीजन नहीं कर सकते। बट समझने के लिए जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे, इसमें ये देखते हैं कि जब हम विश्व को 2 तरह से देखते हैं, एक जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या के एतबार से देखने की कोशिश करें तो एक ऐसा है क्षेत्र है जहां पर क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है मगर जनसंख्या कम है, और उसके बाद क्या है, जनसंख्या बढ़ भी नहीं रही है, और विश्व के अधिकांश देश इस श्रेणी में आते हैं। और जहां तक दूसरे की बात है, दूसरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वह बहुत छोटा है बट जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और उनका घनत्व जो है, जनसंख्या वृद्धि भी ज्यादा है, घनत्व भी ज्यादा है। अब इस श्रेणी में अगर हम देखते हैं तो भारत इस श्रेणी में आता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है मगर क्षेत्रफल कम है। भारत, अब यहाँ तक हम दूसरे उस पे जाएं तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर क्या है, मेहनत का ज्यादा है परंतु कम सुविधाओं के अभ्यस्त हैं, उनको ज्यादा सुविधा की जरूरत नहीं है, पसीना बहाने वाले हैं, और अधिक घनत्व वाली जनसंख्या का देश है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है की वजह से वो बड़ी संख्या में लोग क्या है, शहरों में की तरफ पलायन कर चुके हैं, और बड़े बड़े महानगरों में झुग्गी झोपड़ियों और खोलियों में और सघन बस्तियों का निर्माण हुआ है जहाँ पर वो रह रहे हैं। उद्योग व्यापार इन प्रवासी मजदूरों पर डिपेंड है, और प्रणाली जो है, और ये प्रवासी मजदूर भी जो है रोजगार देने वाले उद्योग और व्यापार समूह पर निर्भर है, दोनों की इंडिपेंडेंसी है। बट भारत में औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय विषमता भी हम देखते हैं। इससे क्या है, विषमता होने की वजह क्या है, यूपी, बिहार, झारखंड जैसे अविकसित राज्यों से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में ये प्रवासी मजदूर विकसित क्षेत्रों के लिए आवश्यकता बन गए हैं। और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं पश्चिम क्षेत्रों में क्या है, पश्चिमी देशों में क्या है, पश्चिमी देशों में के विपरीत जो है, भारत में असंगठित उद्योग अधिक होने की वजह से प्रवासी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और आय कम है। प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था है कि वो या परिवार के साथ शहर में रहें या अपने मित्रों के साथ रहें, और वहां पर उनकी इतनी इनकम आय इतनी नहीं होती कि वो वहां पर जाके कमरा अलग से लें, बट क्या है, वो अपने मित्रों के साथ वो शेयर करके रहते हैं, और एक छोटे से कमरे में 5-6 लोग रहते हैं। और वहां पर क्या है कि वहां पर झुग्गी झोपड़ियों की व्यवस्था ये है कि वहां पर एक यानी निजी आपका शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ सार्वजनिक शौचालय के होते हैं जहाँ पर क्या है कि लाइन लगी होती है, उसको खोलना बंद करना उपयोग करना, यहाँ इतना यहाँ है, वहाँ पर यह है कि जब हम बात करते हैं कि इस सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इस नहीं कर सकते, वहाँ पर संक्रमण बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर ये चीज अगर हम रखें कि शारीरिक और आपका सामाजिक दूरी बनी रहे तो ये हमारे संभव नजर नहीं आती, क्योंकि हमारा इस तरह से प्रवासी भारतीयों का रहन सहन ऐसा बन चुका है जो वहाँ पर ये संभव नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि जब हम देखते हैं दूरी के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करने की, विश्लेषण करने की बात करें तो पश्चिम के देश क्या है, वो क्या है, कोठियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वहां पर डिस्टेंस बनाए रखना, आराम से रहना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर वहाँ के कम जनसंख्या है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो आसानी से वो डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। बट जहाँ पर हम भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले तरफ देखते हैं तो गरीब अधिक है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और शारीरिक सामाजिक दूरी सिर्फ हमारा दीवा स्वप्न ही हो सकता है। अब पश्चिमी देशों में ये भी था कि कोरोना आने से पहले क्या था कि उद्योगों को आर्थिक पैकेज दिया गया और सभी नागरिकों को आर्थिक मदद की, जिससे वो क्या है, उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव ना पड़े कि अब उनको ये भरोसा हो गया कि उनको जॉब से निकाला नहीं जाएगा,
उनकी सुरक्षा हो गई, सैलरी भी मिलेगी। अब यहाँ पर जब हम अपने यहाँ बात करते हैं, इसके विपरीत भारत में क्या है? भारत में क्या है, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उद्योग बंद हो गए। उद्योग बंद होने से क्या है हुआ, कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया गया। अब लॉकडाउन जो है, वेतन नहीं दिया गया, लॉकडाउन का तीसरा दौर भी शुरू खत्म हो चुका, फोर्स शुरू हो गया 18 तारीख से, और वो 31 तक चलेगा, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर ये आता है कि क्या जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ एक अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ। अब यहाँ पर यह है कि मजदूर का उनका रोजगार रहेगा नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क है। और उद्योग कब खुलेंगे, खुलेंगे नहीं खुलेंगे। अब इसकी वजह से, अनिश्चितता की वजह से क्या था कि मजदूर वर्ग जो था वो पलायन करना शुरू हो गया बड़े बड़े शहरों से। अब लॉकडाउन की वजह से उनके आने जाने की सुविधा नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट ने रोक दिया। अब वहां पर जो है सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनको उनके घर तक पहुंचाए, मगर जैसे हमारे स्पीकर ने काफी इस पर कमेंट कर चुके हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। अब यह क्या हुआ, लॉकडाउन होने से क्या हुआ, यातायात ना होने की वजह से पैदल ही हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े, और शारीरिक सामाजिक दूरी जो है का एक माहौल हो गया। अब यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि ये सब तो एक हम डिस्टेंस की बात करते हैं, मगर ये सब चीज कहाँ कब मेंटेन होगी। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जब रोजगार उद्योग की बात करते हैं, तो यहाँ पर यह है कि प्रवासी मजदूरों के गांव चले जाने की वजह से, अगर जब लॉकडाउन खुलता है तो खुलेगा तो फिर उद्योग में काम कौन करेगा? कामगारों के बिना अपने उत्पादन नहीं हो पाएगा। और वही मजदूर के साथ ये है, गांव जाकर वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण क्षेत्र अंडर एम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से वो बाहर निकले थे, अब वही वापस आ रहे हैं। तो अब वहां पर गाँव में क्या क्या व्यवस्था है, कैसे कहाँ से एम्प्लॉयमेंट होगा? अब इससे क्या होगा कि साधन और उसकी मांग के बीच का जो अंतर संबंध है, वो भारत में वह इंगित करता है कि शारीरिक सामाजिक दूरी का स्लोगन यहाँ पर मुश्किल है, जो कि आंशिक लॉकडाउन व 3 फेज में दिखा भी है, जहाँ हजारों लोग जो है रोड पर आ गए। उसके अलावा क्या है कि जब हमने और ये देखा कि जब शराब की दुकानें जो खोली गई, उसकी जो भीड़ में जो की अवधारणा जो हमारे दिमाग में बनती है कि अगर ये सब चीजें हैं तो कहाँ से किस तरह के हम कोरोना से बचने के लिए जो कवायद कर रहे हैं, जो कोशिश सरकार कर रही है डिस्टेंस बनाने के कर रही, तो हम कहाँ से किस तरह से हम इसको करेंगे। और उसके बाद फिर जब हम आते हैं कि इसके विपरीत जाए तो हम कोरोना की डर से, लॉकडाउन के कारण, अब एक ये भी एक दूसरी पॉजिटिव हम देखते हैं कि अब हमें जो है हवा बेहतर, अच्छी हम सांस ले रहे हैं, अच्छी हवा हो गई है। और हिमालय की चोटी भी अगर सहारनपुर से देखा जा सकता है, गंगा जमुना और ऐसी अन्य नदियों के पानी साफ हो गए हैं। और इसे भी बट ये भी एक इतना भी अगर हम नहीं, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो है इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। लोगों की सेहत, रोजी रोटी, सब पर आज खतरा मंडरा रहा है। स्पष्ट है कि इस संकट से निपटने के लिए दूसरे संकट का सहारा नहीं लिया जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या हम इस पूरी विपदा से कुछ सीख ले सकेंगे? जाहिर बात है, कहावत है, बड़ी आपदा आती है तो समाज में बदलाव आता है। जाहिर सी बात है, हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगा, और यही इसी सीख से, ताकि जो कुछ दूसरी जो अस्थायी समस्याएं हैं उससे भी जो निदान हो सकेगा। जैसे जलवायु संकट जो है दुनिया का विराट समस्या है। वायु प्रदूषण से अकेले जो है भारत में हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। वहीं नदियों तालाबों के खत्म होने से देश के कई हिस्से में भीषण जल संकट हो सकता है। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों कोरोना के प्रभाव को और बढ़ा देगा। इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इससे कोरोना का संकट और बढ़ जाता है। अब ये भी एक समस्या है कि हमें जो है स्वच्छ पानी भी चाहिए। अब नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कि जो 2021 तक जो है जो देश के शहरी भीषण जल संकट की समस्या हो सकती है। अब यहाँ बताने की आवश्यकता भी पड़ रही है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें स्वच्छ पानी की जरूरत है, हाथ साफ करना है, स्वच्छ रहना है। और ऐसे अगर पानी नहीं होगा तो हम कहाँ से क्या करेंगे।
इससे हमारी ज्यादातर आबादी तक पानी साफ पहुंच नहीं होगी तो कोरोना से हमारी लड़ाई जो है ऑलरेडी कमजोर पड़ जाएगी। हमें इसलिए भी सोचना होगा। दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट है कि हम जो है अस्थायी रूप से लॉकडाउन नहीं रख सकते। हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर भी को पटरी पर लाना होगा, उद्योग चलाने होंगे। इसके साथ ही हमें देखना होगा कि हवा, पानी और नदियां फिर से पुरानी स्थिति में ना आ जाएं। लेकिन जब हम दोबारा सब कुछ शुरू करेंगे तो क्या वह नई शुरुआत हो सकती है? क्या हम कोई नया एक प्लान लेके चलेंगे? क्या हम इस जगह से समावेशी विकास, कंपोजिट डेवलपमेंट और बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं? ये भी क्वेश्चन मार्क आता है। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा जो पर्यावरण का कम से कम नुकसान करे। हमें अक्षय ऊर्जा पर अपनी निर्भरता ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी, जिससे साफ हवा को अस्थायी बनाया जा सके। अपनी नदियों और तालाबों को बचाना होगा, जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा, परंपरागत कृषि को प्रोत्साहित करने की नीतियां बनानी होंगी। उसके अलावा जो है सरकार ने जो भी इस संकट से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसे न्यायपूर्ण और समावेशी नीतियों में ही निवेश करना होगा। आज हमारे समाज में आर्थिक असमानता सबसे अधिक है। ऐसे में वर्तमान आर्थिक विकास की नीतियों पर विचार करने की जरूरत है, जो असमानता के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की भी समस्या बढ़ा रही है। आज बिना भेदभाव सबके लिए रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित सामाजिक परिवहन सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक तरफ सरकार को अस्थायी और दूरदर्शी योजना लाकर साफ हवा, साफ नदी और बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित करना होगा, तो वहीं हमें भी अपनी जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाना होगा। तभी हम थैंक यू अमरनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। समावेशी विकास की बात सरकार भी करती है, मोदी जी भी करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात। और हमें लगता है कि अगर जी देखा जाए कि नीतियां बहुत हैं, सरकार के पास नीतियां हजारों हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, जी लेकिन सरकार की अगर नीयत सही हो जाए, साफ हो मगर जाए, क्या तो रहे हमें नहीं लगता है होगा। कि सारी समस्याओं का नियत सही हो डर जाए ही तभी समाप्त हो सही जाएगा। होगा। और आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट जो हमारे स्पीकर हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आशीष सक्सेना जी, मैं सर आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखें। उसके बाद हम जितने पार्टिसिपेंट हैं सबको अवसर दिया जाएगा। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो लोग देंगे, फिर हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्रोफेसर आशीष। धन्यवाद अमरनाथ जी। सबसे पहली बात तो ये है कि एक अच्छा इंटरेक्शन का मौका मिला, जिसमें खुल के हम लोग अपनी बातें रख सकते हैं। शायद बहुत कम मंच ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं, चाहे वो पक्ष या विपक्ष की बात हो। तो मुझे लगता है कि कोविड के बारे में हमें लगता है सभी लोग चिंतित हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक प्रकार का एक बीमारी तो है, एक एपिडेमिक तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक खास प्रकार का भय है। और ये भय जो है वो कई स्वरूप में दिखा जा सकता है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्या निदान होगा या इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी अभी तक। तो सबसे बड़ा खतरा तो यही है। और ये जो भय है वो कहीं ना कहीं हम लोग को कई प्रकार के नए प्रकार की मुसीबतों में भी डाल रहा है, चाहे हम सरकार के पक्ष की तरफ से देखें या आम लोगों की तरफ से देखें। किसी के पास कोई एक ठोस सलूशन नहीं है जिसको द्वारा वह अपनी बातों को या एक खास स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है चीजों को कैसे अपनाया जाए। जैसे कि हम लोग सब
कई लोग जो हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और हम लोग को कहा गया था कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन माध्यम से जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। लेकिन ये जो एक कह सकते हैं कि तुगलकी फरमान जारी हुआ कि हम लोग को जो है अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, वो तो हम लोग रख सकते हैं, रखेंगे भी उस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ये काम किसके लिए कर रहे हैं। हम लोग ये काम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कि हम लोग के साथ पढ़ने आते थे, और उन तक हम अपनी सूचनाएं दें, उनको जानकारी दें, जिससे कि अविरुद्ध जो शिक्षा है वो बरकरार रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग को ये भी देखने की जरूरत है कि हम लोग के अंतर्गत क्या क्या खामियां हैं। खास करके जो बच्चे विभिन्न प्रांतों में गए हैं, जो आपके कह सकते हैं कि ग्रामीण अंचल में भी हैं या कस्बों में हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि नेटवर्क की बात करें हम लोग, या आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात करें या स्मार्टफोन की बात करें, तो वहां पर ये सब चीजों का बहुत बड़ा अभाव है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तरफ तो एक कंपल्शन है कि आपको ये करना है, मे बी हम लोग एक सर्टिफिकेशन देंगे कि हाँ हमने जो है इतनी क्लासें ली या इतना कोर्स कवर कर लिया, लेकिन उसका फायदा क्या है। तो अल्टीमेटली हम लोग का जो ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम लोग इतनी चीजों को मैकेनिकल करते जा रहे हैं, इतना जो है हर एक चीज को बांधते जा रहे हैं कि लोगों के पास अपना कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। तो एक प्रकार से हम लोग इस स्थिति को ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपका माइंड है, जो आपका मस्तिष्क है और आपकी जो क्रिया है, उसके बीच में कोई तालमेल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है जो कि आपका अपनी बॉडी के साथ है। जो आपका माइंड कहता है और आपकी जो एक्टिविटी है, उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं सकते। आपका मस्तिष्क कुछ प्लान करता है लेकिन आपको क्रियान्वयन नहीं करने दिया जाता है। तो ये जो एक प्रकार की दुविधा जो है, जिसके साथ हर एक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि संघर्ष कर रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है ये कि सरकार की तरफ हर जना देख रहा है कि सरकार एक निष्पक्ष तरीके से किस प्रकार से अपनी चीजों को, अपनी पॉलिसीज को लागू करे। अभी जैसे हम लोग एनडीटीवी का अभी आज का ही वर्जन देख रहे थे दोपहर में, तो उसमें पता लगा कि जो पैकेज की घोषणा करी गई थी, उन पैकेज का तो ऑलरेडी एक स्टेज बाय स्टेज जो है उसका निस्तारण हो चुका है। लेकिन उसको एक नए पैकेज के रूप में प्रस्तुत किया कि ये जो है कोविड-19 के चीजों को समझने के लिए या उनको दूर करने के लिए जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी हाईलाइट हुआ कि जो आपका जो लोन है, जो अमाउंट है वो लोन के रूप में दिया जाएगा, उस तरह से कैश जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो आपकी रजिस्टर्ड यूनिट्स है, सिर्फ वही इसका लाभ उठा सकती है। तो ये जो एक आपका कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है व्यक्तियों का, समूहों का, ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ऐसे में लगता है कि क्या जो आपके अनरजिस्टर्ड हैं, खास करके वैसे लोग जो कि कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उनकी सुविधा या उनका जो दुख है उसको कौन दूर करेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय संदर्भ में अगर हम लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ऐसे लोग काफी मात्रा में हैं। खास करके जो हम लोग बात कर रहे थे विविध मजदूरों की, जो कि कई प्रांतों से उठ के जगह जगह से अपने प्रदेश की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं उस तरह से। और ये कई सारे इसमें से ऐसे मजदूर हैं जो कि कह सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड तौर पर जो है दिखाई देते हैं। एक प्रमुख जो आपके सामाजिक अर्थशास्त्री जिनका नाम आप लोग सब जानते होंगे उस तरह से, बेसिकली येन ब्रेमेन जो है, उनका कहना है कि जो आपके माइग्रेंट लेबर है उनको हम लोग बेसिकली फुटलूज लेबर की तरह देखते हैं, यानी कि जिनके पास कोई जमीन नहीं है। और यही स्थिति हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि उन माइग्रेंट्स के लिए, जो मजदूर हैं, उनके लिए सुख दुख के लिए कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। क्राइसिस जब उत्पन्न हो रहा है तो आप लोग के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं उस तरह से। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक प्लानिंग जो मैकेनिज्म है सरकार का, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर के रूप में दिखाई देता है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो एक सिचुएशन जो इमर्ज हुई है, वो एक प्रकार से एक टेस्टिंग ग्राउंड है हम सभी के लिए, सरकार के साथ साथ हम सभी के लिए, कि हम लोग के अंतर्गत क्या क्या खामियां हैं या क्या हम लोग ने प्रोग्रेस किया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं खास करके कि हम लोग बात करते हैं कि एक खास प्रकार का जो एक ज्ञान अर्जित किया हम लोग ने, खास करके मॉडर्निटी की बात हम लोगों ने जो करी, आधुनिकता की बात करी। हम लोग क्या शायद इस आधुनिकता की बात कर रहे थे जिसमें कि हम लोग एक खास प्रकार के सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें दूरियां बढ़ रही हैं, और अब प्रैक्टिकली हम लोग दूरियां बढ़ा रहे हैं उस तरह से, और जिसमें आइसोलेशन जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो हम लोग के जो पारंपरिक जो आपके तरीके थे, चाहे वो नमस्ते करने की बात है, चाहे वो आपका पर्दे की बात है, हमें लगता है उसमें बड़ी व्यवहारिकता थी।
और उसमें जो आपका एक समाज में जो एक खास प्रकार की जो दूरी थी, उसका एक खास फंक्शनल पर्सपेक्टिव दिखाई देता है। लेकिन आज हम लोग ने मॉडर्निटी के तर्ज पे क्या किया कि हम लोग ने तो जो एक अनसिविलाइज्ड एनिमल है उसको भी हम लोग ने नहीं छोड़ा। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वुहान का जो केस है कि चमगादड़ से जो है ये बीमारी उत्पन्न हुई। तो ऐसा एक प्राणी जिसको कि हम लोग ने अभी तक सिविलाइज नहीं किया था, डोमेस्टिकेट नहीं किया था, हमने उसको डोमेस्टिकेट करने का प्रयास किया और उसके नाते ये चीज हुई। तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि हम लोग को जो है अपना जो एक कंज्यूमरिज्म का जो भाव है, हम लोग इतने ज्यादा उपभोक्तावादी हो गए हैं, हमें लगता है कि हमें उसको कम करने की जरूरत है। हम लोग को अपनी सुविधाओं को, हमें अपने जो जरूरतें हैं उसको, जो आपके आसपास के जो संसाधन है उसी के माफक ही हम लोग को कहीं ना कहीं चीजों को बनाने की या समझाने की जरूरत है। खास करके कि हम लोग 4 तरीके से चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि अगर एक अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफ तो हम लोग लैब टू लैब के इंटीग्रेशन की बात को रखें, जो एक तरीका है जिसको कि हम लोग अपना सकते हैं। लैब टू लैब से हम लोग का मतलब ये है कि जो आपके विभिन्न मेडिकल जो आपके यूनिट्स हैं वो किस प्रकार से इस पर कार्य कर रही हैं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के द्वारा जो है वह एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर और पूरे प्रांत में जो है वो ग्लोबल लेवल पर भी जो है काम कर सकती हैं। तो लैब टू लैब इंटीग्रेशन जो है हमें लगता है कि सबसे पहला चरण है जो होना चाहिए, जिसमें कि आप दूरी के बना के रखते हुए भी आप आपस में इंटरेक्ट करके अपने चीजों को अंजाम दे सकते हैं। खास करके हम लोग बात करते हैं कि लैब जो बेसिकली रिसर्च यूनिट्स होते हैं जिसमें आइसोलेशन होता है और एक कंट्रोल सिचुएशन में हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो लैब टू लैब इंटीग्रेशन को हम लोग को ठीक करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो दूसरी एक महत्वपूर्ण जरूरत है वो है कि आपको उस लैब को लैंड तक, भूमि तक लाना पड़ेगा। तो आपका लैब टू लैंड का जो एक तरीका है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग को अपनाना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ चीजें जो है कह रहे हैं कि वैक्सीन बन रही है या उसका एक अंजाम हो रहा है, जैसे कि हम लोग ने डॉक्टर साहब ने कहा भी था कि हम लोग उसकी टेस्टिंग बंदरों पर कर चुके हैं और अब जो है इंसानों पर करेंगे। तो ये लैब टू लैंड का जो एक सीमा है उसको हमें लोग को लगता है कि जल्दी से जल्दी हस्तांतरित किया जाए, जिससे कि लोग जो है उसमें एक जो भय है वो धीरे धीरे खत्म हो। जैसे कि हम लोग ने पीपीपी की बात करी थी कि आपका जो प्रोटेक्शन किट्स हैं वो आयात करी गई थी चाइना से, वो बहुत ज्यादा एक अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं थी। भारत में जो उपलब्ध की चीजें वो भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं थी। तो हम लोग जो इक्विपमेंट जो हम लोग कह रहे हैं कि बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज में बन रही हैं उस तरह से, उसको हम लोग इफेक्टिवली लैंड तक लाएं। हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जरूरत है जिसको कि हम लोग को एक स्ट्रेटजी के रूप में अपनाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हम लोग को जो है एक जो सबसे और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लैंड से लैंड का जो एक जुड़ाव है वो भी हमें लगता है महत्वपूर्ण हो जाता है। लैंड से लैंड के जुड़ाव की बात में मेरा तर्क यही है कि आप एक प्रदेश की स्थिति को ले लें, जैसे कि हम लोग ने अभी जिक्र किया आप लोग में से कि उड़ीसा में जो है काफी हद तक चीजें कंट्रोल में लाई जा चुकी हैं। तो उस पर्टिकुलर स्थिति को हम लोग किसी अन्य प्रदेश में या उस तरह की परिस्थितियों को पैदा करके हम लोग वहां पर भी उसको क्रियान्वित करें। तो लैंड का मतलब है कि अनुभव जो है आपके विभिन्न एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम अन्यों के साथ शेयर करके किस प्रकार से चीजों को जो प्रैक्टिकलिटी के माध्यम से देखे जा सकते हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं अपनाएं। तो हमें लगता है कि एक खास प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि विकास की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि लोगों को एक ट्रस्ट भी होगा कि चीजें हो भी रही हैं और उसको हम लोग इफेक्टिवली किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को हमें लगता है कि कई सारी चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा, खास करके कि शिक्षा जगत में हम लोगों ने जो बात करी कि आप ऑनलाइन शिक्षा दें या इंटरेक्ट करें उस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये कार्य जो कर रहे हैं उसमें व्यावहारिकता क्या है। खास करके कि हम लोग ने जिक्र किया कि एक कोर्स को हम लोग को खत्म करना है या फिर जो है आपको एक खास संदर्भ में एग्जाम को लेना है या एक एवरेज मार्किंग के द्वारा उनको पास करना है। तो ये जो आपके तरीके हैं ये हमें लगता है कि इस पर हम लोग को सोचने की जरूरत है कि क्या ये ठीक है कि टाइम बिंग के लिए तो ये चीजें सही हैं, लेकिन क्या हम लोग अभी तक कोई इफेक्टिव एक मैकेनिज्म को डेवलप नहीं कर पाए हैं। खास करके कि हम लोग आईसीटी की जो बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग का एक बहुत बड़ा एक जरिया है जिसके द्वारा हम लोग डिस्टेंस के साथ जो है चीजें कर सकते हैं। मुझे भी उसमें काफी ज्यादा कह सकते हैं कि भरोसा है, जो हम लोग देख भी रहे हैं कि हम लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को ये भी देखने की जरूरत है कि ये जो आपका एक आईसीटी का जो एक फंक्शन है उसको हम लोग कई सारे कांस्टेंट के साथ हम लोग को उसको झेलना पड़ेगा। चाहे वो हम लोग कहते हैं बिजली की बात करते हैं
चाहे हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सुविधा की बात करते हैं, या वेवलेंथ की बात करते हैं, या ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, हमें लगता है कि हमें इन सब चीजों की भी मजबूती चाहिए। तो एक तरफ तो हमें प्रोटेक्शन तो करना है उस बीमारी के साथ साथ, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास अन्य जो इनडायरेक्ट रिसोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम लोग इनसे सही मायनों में लड़ सकते हैं, उसको भी हम लोग को कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। हम हर चीज पर चेक करके या हर चीज पर कंट्रोल करके, नियंत्रित करके चीजों को अपने तरीके से नहीं चला सकते। तो हमें लगता है कि ये जो एक तरीका है जिसमें व्यावहारिकता जो है वो मिसिंग है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि आपका जो कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है शुरू में आए और उसके बाद जो है सडनली जो है उस पर एक उनको इनिशियली इजाजत नहीं दी गई, लेकिन बाद में फिर हम लोग ने अलाउ किया कि रेलवेज को और बसेस को स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहल तो काफी पहले हो जानी चाहिए थी, या इसके विपरीत जो एक दूसरा स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी। खास करके हमें लगता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास एक CSR का फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो ये कार्य आराम से कर सकता है कि अपने अंतर्गत उसके पास जो भी मजदूर हैं, उसके पास जो भी श्रमिक हैं, उसको कहीं ना कहीं वो क्या अपने हिसाब से उसको टैकल नहीं कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि ये CSR फंड जो है उसका एक उपयोगिता अपने संदर्भ में या अन्यों के संदर्भ में किस प्रकार से की जाए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मतभेद दिखाई देता है। और खास करके प्राइवेट सेक्टर जो है वो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि जो सैलरीड क्लास है या जो हम लोग का एक आय वर्ग है या जो एक बैंक है, उस पर तो सरकार अपना नियंत्रण रख सकती है, चाहे वो आपका इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम कर दे, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका 1 डे सैलरी की बात करते हैं, कई सारे तरीके हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर किस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रयास होना चाहिए जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही जिम्मेदार हो जितना कि पब्लिक सेक्टर हो। तो ये जो एक डाइवर्सिटी तो हम लोग के भारत में है काफी, कि पब्लिक प्राइवेट का एक जिसको हम कहते हैं प्राइवेट पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप है या पार्टनरशिप है, लेकिन इसमें जो है पार्टनरशिप में एक अनइक्वल्स है, एक डिस्ट्रस्ट भी है। उस तरह से हम लोग अगर पब्लिक सेक्टर पर ट्रस्ट करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो ये जो ट्रस्ट है हम लोग को लगता है कि उसको इस में हम लोग को उस ट्रस्ट को डेवलप करने की जरूरत है, जो कि एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर जो है कहीं ना कहीं कार्य करे। खास करके कि हम लोग की जो एक पहल है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो आपका सरकार है वो प्राइवेट सेक्टर पर भी उतना ही नियंत्रण कर सके। चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स को वेजेस को लेकर है, ये ऐलान करना बड़ा आसान है कि आप सबको वेजेस देते रहेंगे, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है या अनरिकॉग्नाइज है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो हम लोग उस बात का या उस पॉलिसी का किस प्रकार से क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग को लगता है कि अफेक्टिवली देखना पड़ेगा। खास करके कि जो आपका एक डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होना पड़ेगा। एक इनफॉर्मल सेक्टर में भी हम लोग को कंट्रोल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर पाते हैं तो हमें लगता है कि एक अच्छा प्रयास किया जा सकता है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग को कम्युनिटी से हटके ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सामुदायिक पक्ष पे तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक मानवता का पक्ष जो है वो भी हम लोग को कहीं ना कहीं अख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि तर्क यही है कि ठीक है, ये बात जरूर है कि श्रमिक वर्ग जो है वो ज्यादातर निम्न जाति या अन्य पिछड़ी जातियों के साथ जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके जो भाव है हमें लगता है कि उनको भी हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मदद करने की जरूरत है। अगर वह अपने घर में जाके सुकून से रहना चाहते हैं तो सरकार का ये पूरा जिम्मेदारी बनती है कि वह उनके वेजेस के साथ साथ उनकी ये जो मनोभाव है उसको भी रेस्पेक्ट करे। तो यहाँ पर जो एक डिस्टेंसिंग जो दिखाई दे रही है कि जो आपका एक मनोभाव उनका कुछ और है, लेकिन जो आपका इकोनॉमी है वो कुछ और कह रही है। उस तरह से फैसिलिटीज की बात करें तो कुछ और है। उस तरह से आप देखते हैं कि एक तरफ कहा गया था कि जो आपका जो ट्रैवल करेंगे लोग उनसे पैसा नहीं है, टिकट के पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन कई ऐसे फैक्ट्स मिले जिसमें कि उनसे चीजें टिकट का पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो एक डायलेमा है वो उसको दूर करने की जरूरत है। खास करके हमें इंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को इरेस्पेक्टिव ऑफ कि रूलिंग पार्टी कौन है उस स्टेट की या सेंटर किस प्रकार से उसके साथ रिलेशंस पे है, हमें लगता है कि ह्यूमैनिटी के नाते कम्युनिटी के से हटकर हमें ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तब हम लोग इस चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हम लोग की कुछ नैतिक कह सकते हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होने चाहिए लोगों के प्रति। खास करके मॉरल ऑब्लिगेशन से हम लोग का तर्क यही है कि अगर हम लोग अपने आसपास के वातावरण को ही कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग के घर की काम वाली है,
या हम लोग के घर का आसपास में जो नाई की दुकान है, या हम लोग जिससे सुविधाएं लेते हैं, चाहे राशन की दुकान है, तो हम लोग उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन जो है, उसका इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट अप करते रहें अपने अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी, तो भी हम लोग एक कम्युनिटी लेवल पर कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। तो ये जो आपके तरीके हैं उसके द्वारा हम लोग एक जो कह सकते हैं ना मैकेनिकल लिंकेज से हटकर हम लोग को ऑर्गेनिक लिंकेज की तरफ जाना पड़ेगा, कि हम लोग सिर्फ नियंत्रित करें, समय के अनुसार ही लोगों को बांधें, तो ये चीज अच्छी नहीं है, बल्कि हम लोग को व्यावहारिकता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कि मान लीजिए अगर एक घर में काम करने वाले के को हम मना कर रहे हैं कि हम आपको अपने घर में नहीं आने देते, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी तो देखना है कि उसकी रोजी रोटी जो है, जो हर दिन अपना मेहनत करके जो है रोजी रोटी कमाता है, उसके पास वो सुविधा कैसे पहुंचेगी, या उसके पास जो है आपका बैंक का जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो वह कैसे होगा। तो इसके लिए हमें लगता है कि जो आपका एक मॉरल ऑब्लिगेशन है हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट कम्युनिटी लेवल पर, उसको भी हमें कहीं ना कहीं आगे लाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हम लोग को जो एक कह सकते हैं कि एक खास प्रकार का, जब कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड सिचुएशन आएगी तो हम लोग किस प्रकार से व्यवहार करना है, तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि ट्रेन में हम लोग एक लिमिटेड संख्या में ही लोगों को भेजेंगे, ये ठीक है फिलहाल के लिए, तो ये चलिए ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है एक इमरजेंसी है और इस टाइम पर तो ये काम किया जा सकता है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि कल को जो फ्लाइट या जो ट्रेन आपकी मूव करेंगी जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, तो वो क्या इकोनॉमिकली इस चीज को देख पाएंगे या कितना इफेक्टिवली उस काम को कर पाएंगे। तो ये जो आपका एक खास करके जैसे शराब की दुकान खुली थी तो आपने जो भीड़ देखी, जिसमें कि एक प्राइवेट कह सकते हैं कि बेनिफिट जुड़े हुए थे, और एक खास प्रकार का जो टैक्स है वो खास मुनाफा जो है उसमें दिखाई देता है। तो ये जो आपका एक पैरामीटर्स है जिसमें कि प्राइवेट जो है वो खुलकर जो है अपना बेनिफिट लेना चाहेगा, और जिसमें कि लोगों की उनकी जो बीमारियां हैं या उनको लेकर जो उसकी संवेदनशीलता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इन चीजों को जो है वो टेम करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ प्रयास हम लोग के हर तरफ से होने चाहिए। उस तरह से सिर्फ सरकार पर ही हम लोग पूर्णतः निर्भर हैं, ये सही नहीं है। उस तरह से हम लोग को कई आयामों पर इस पर काम करना पड़ेगा, क्लस्टर लेवल पर जो काम करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम लोग चीजों को इफेक्टिवली कर सकें। मुझे लगता है समय बढ़ रहा है, तो पासवान साहब को मैं धन्यवाद दूंगा और मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम देता हूँ। हम है लखीमपुर जाएंगे फिर भरेंगे, क्या कम हो जाए भेज दिए तुम। अगर इस तरीके से सरकारें और समाज के हर व्यक्ति अगर समझ जाए तो हमें लगता है कि इन समुदायों को आज समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कम सामना करना पड़ेगा। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर विंध्याचल मिश्र जी से निवेदन करूंगा। विंध्याचल मिश्र जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? प्रोफेसर विंध्याचल मिश्र जी, और किसी को अगर कोई सवाल हो मन में तो आप पूछ सकते हैं। हमारे सारे स्पीकर हमारे मौजूद हैं, किसी को कोई सवाल करना हो तो आप पूछ सकते हैं। महामारी एक लगा देंगे, 7 साल अंदर रहिए, यहाँ नहीं रहेंगे, उस हॉस्टल में रहिए, वो भी तो हॉस्टल है एक तरीके का। किसी का कोई सवाल है, कोई सुझाव, सवाल? आदमी की गिनती नहीं है, कोई आदमी मर रहा है उठा के फेंक दे रहा है। एसएस का पूरा मीडिया रिपोर्टिंग, हमारे जो विद्वान स्पीकर थे उनकी बातों से हर प्राइवेट रजिस्टर में नाम पता लिख लिया। विंध्याचल मिश्र जी आवाज सुन रहे हैं? विंध्याचल मिश्र जी सर सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सर। हमारे सभी अतिथियों प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन। पुरुषोत्तम कुमार। ठीक सर, धन्यवाद सर। ये कह रहा था कि हमें 2 मिनट ज्यादा नहीं, ये जो राष्ट्रीय वेबिनार इंडिया प्रोफेसर 19 चिदानंद सिन्हा कॉलेज एडवांटेज एंड लिमिटेशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नाथ एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद का ऑफ एजुकेशन किया। और इस कार्यक्रम में, इस कड़ी में इन विशेषज्ञ विद्वानों को बुलाया है आपने। विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और सभी ने अपने अपने तरह से अपने अपने विषय में उसके ये जो
कोविड-19 है, से उत्पन्न जो संकट है भारत, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, उस पर बड़े व्यापक और गहराई से चर्चा परिचर्चा की है। साथ इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या हुआ था? कहना चाहूंगा कि पंक्ति बड़ी ही मार्मिक लगती है। इन आंखों में सपनों से ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं। आंखों में सपनों से ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि यह समय सूचनाओं का समय है। क्योंकि यह समय सूचनाओं का समय है। सूचनाओं में तब्दील हो रहा है ज्ञान, यहाँ तक कि सच भी अब सिर्फ एक सूचना है। यहाँ तक कि सच भी अब सिर्फ एक सूचना है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले पद्म श्री परम आदरणीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जनरल हेल्थ में रहे हैं, उन्होंने बड़े ही व्यापक ढंग से स्वास्थ्य संबंधी पर बड़ी गहराई से विचार किया है। हर पक्षों पर नजर डाला है और उसकी ऋणात्मक और धनात्मक क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, और उस वैक्सीन के बनने में और व्यापकता से विचार करने के लिए मैं पद्म श्री परम आदरणीय जगदीश प्रसाद का इस संस्था की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। हमारे दूसरे वक्ता हैं प्रोफेसर AS इमाम शास्त्री सर। इमाम शास्त्री जो पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, विषय के एक्सपर्ट और विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आज के समय के जो गंभीर संकट है और पूरी जो एक दहशत है, एक भय और एक स्थिति जो समाज में, भारतीय समाज में उपस्थित हुई है, खास करके जो मजदूर तबका है, जो श्रमिक तबका है, हाशिए के लोग हैं, उनमें एक बहुत बड़ा भय और अराजक स्थिति पैदा हुई है। सारे पक्षों पर उन्होंने मानवीय ढंग से जो है वो बुरा नहीं हो सकती है अभी तक हम भी जब तक रह रहे हैं के लिए, बल्कि सरकार के लिए भी उन्होंने एक नसीहत दी है। तो इसके लिए हम प्रोफेसर AS इमाम शास्त्री को इस गंभीर चर्चा के लिए आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे तीसरे वक्ता हैं प्रोफेसर HL दुसाद, जो बहुत ही बड़ी ही ऊर्जा और बड़ी पक्का से उन्होंने बात रखी। जाने माने पत्रकार हैं और बड़े ही ओजस्वी बातों से, विचारों से जो है हम सभी को लाभान्वित किया। उन्होंने पूरी स्थितियों को तार तार करके समझाया है। जैसे नोटबंदी हुआ, उसी तर्ज पर लॉकडाउन हुआ, इस तरह बात करके बहुत गहरी समझ पैदा कर दी है। उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए हमें एक नई प्रेरणा दी है कि कैसे समाज के सुविधाभोगी लोग और जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो विस्थापित, उसके प्रति कैसे हृदयहीनता दिखाई देती है। एक बहुत बड़ी बात की है कि जो श्रमिक है, वंचित है, उसके प्रति उदासीनता, हृदयहीनता, चाहे वो सुविधाभोगी लोग हों या सत्ता के लोग हों, पर बड़े गहराई से विचार व्यक्त किया है। इसके लिए श्री HL दुसाद सर को दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चौथे वक्ता हमारे हैं आशीष सक्सेना सर। प्रोफेसर आशीष सक्सेना सर भी बहुत गहराई से आर्थिक स्थितियों पर भी डाला है, की भी बात की है उन्होंने। भोग करने वाली जो सोसाइटी है, समाज है दुनिया की, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें जो भोगने की लालसा है, उस लालसा पर घोर टिप्पणी की है उन्होंने। में एक डायलेमा की स्थिति पर भी विचार किया है, और हमारी जो मेडिकल और स्वास्थ्य की सिचुएशन क्या है, शिक्षा की सिचुएशन क्या है, मानवता की स्थिति क्या है, इन सारे पहलुओं पर उन्होंने बड़े व्यापक और गहराई से रोशनी डाली है। इसलिए मैं प्रोफेसर आशीष सक्सेना को इस जवान वक्तव्य के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर अगले वक्ता हमारे हैं प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ।
सर मोहम्मद आरिफ सर जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के राजनीतिक शास्त्र के विद्वान हैं, जिन्होंने अब इस समस्या को राजनीतिक पक्षों से बड़ी गहराई से देखा है। राजनीतिक एंगल से वो देखते हैं कि इसमें कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं इस स्थितियों के लिए, और उन्होंने भी इसके अस्थायी इस समस्या के बाद की स्थितियों के भी लोगों को आगाह किया है। इस तरह उन्होंने पूरे गांव से लेके शहर से लेके महानगरों तक जो मजदूरों की स्थिति है उस पर गहराई से अपनी रोशनी और दृष्टि डाली है, और एक प्रेरणा स्रोत हमारे सामने अपने विचार वक्तव्य रखे हैं। ये इसके लिए हम प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अंत में मैं डॉक्टर अमरनाथ पासवान को भी जो इस सुंदर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। मैं इसलिए भी बधाई देता हूं, इस ऐसे समय में, इस संकट के समय में उन्होंने इस विशेषज्ञ विद्वानों को एक जगह जोड़ करके, ये जोड़ना बहुत बड़ी बात ही होती है। जब कई विद्वान एक साथ जुड़ते हैं तो उनके परस्पर रगड़ से एक नए विचार, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा फूटती है, और इसके मेल से जो केमिस्ट्री बनती है उसे हमारा समाज, हमारे लोग, अशिक्षित लोग, मजदूर भी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो रमनलाल पासवान ने इन विद्वानों को एक साथ जोड़ करके बहुत बड़ा काम किया है, एक समाज का भला किया है। इससे हम ही नहीं लाभान्वित हुए, बल्कि जितने कोने कोने से, देश के कोने कोने से वो तमाम विद्वान जन जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो जिनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम की गौरव और गरिमा बढ़ गई है, तो वो उनके प्रति भी हम गहरे आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में मैं एक बात जरूर इससे कहना चाहूंगा कि तारीख की नजरों ने ये जब्र भी देखे हैं, तारीख की नजरों ने ये जब्र भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सबको धन्यवाद। क्या बात। चलिए, आप सब लोगों को पुनः मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब लोग जुड़े और बहुत समय दिया आप सब लोग, आप अपना ज्ञान भी दिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्दा, बहुत क्रिएटिव रहा सब। धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरे पास शब्द ही नहीं कहने के लिए। जो प्रोफेसर बलराम पासवान सर जुड़े हुए हैं मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज से। सर आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। कुमुद सिंह जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा। रविंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार भैया। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत समय दिए। और हमारे जो विद्वान स्पीकर थे, आपके ज्ञान से हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। फिर हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।